Ready? Namaste and good evening, everyone. Wish you all a very happy Raksha Bandhan and a happy Narali Purnima. On Saturday, we met with Mr. Pranay, who gave us his wonderful experience about Mount Everest. Uh, for me, it was totally a movie plot where it was so mesmerizing to hear his experience, how he climbed, and what he did, how he handled all the difficulties which came in his way. Uh, and so imagine that you are just so near to the peak. You can see that peak in front of you, and you're not able to actually reach there. And yeah, although there were a lot of hurdles, but something that touched my heart was that he thought about his Sherpa. That Sherpa is not well, and I should help him rather than achieving and looking at one goal that this is my dream to reach Mount Everest. He didn't thought about that. All he thought about was how that Sherpa, he is not well, and I should get him back to the baseline. And that is what I think is the humanity, and that is what we learn from adventure tourism. So it is not something like just having fun or thrill or that adrenaline rush that we call, or we have to do it because it's in trend. But I think it is something far beyond that. It is more about your emotional connections, your uh, the decision making power, and it is more about your mental health and about the team spirit. And so I think we have a wonderful person who has been training a lot of people into this adventure sports. So please welcome Mr. Amol Khante from Nagpur. Amol Dada. Hello, namaste. Hello. So Amol Khante is the founder of CSE Allrounder, an outdoor training company from Nagpur. He has this beautiful campsite as well called Cherry Farm, which is right in the bank of the river and amidst nature at Ramtek. Education wise, Amolada has done BA LLB, and he has further pursued a lot of degrees in physical training. He's currently undertaking MA Psychology from IGNOU University, and he is currently also taking up PhD in Adventure Sports Psychology from Nagpur University. He has done several training courses in mountaineering, parasailing, paragliding, rock climbing, and etc. He has been actively training our Army, Navy, Air Force, NCC officers, and police forces into various trainings like defense, quick response team, rescue operations, team building, and leadership. On a personal side, he is a fun loving person, full of energy, full of charm. And although he is into adventure, he is not that cold hearted person. He is totally fun to be with. He's equally a wildlife and nature conservationist, and he actively participates as well as organizes several programs on nature education for children. So please welcome Amolji, and let's start our conversations with him today. Hello, Amol. Hello. Very calm. It is right in the bank of the river and amidst इसको nature share at Ram. करेंगे. So, Amol Dada, I would like to know about your journey that from being a lawyer and how did you turn into an adventure sports person? So it was, I think, not just a passion, and you have now created into your profession. So how was that entire transition? Can you please tell us about it? Uh, Basically, I am from Buldana, small town in Vidarbha, just near to Lonar Lake. आप सबने सुना होगा लोनार के बारे में. और लॉयर तो मैं कभी था ही नहीं, मेरा सिर्फ एजुकेशन है. लॉ में ग्रेजुएशन मैंने लॉ में किया है, पर मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं की. तो बेसिकली बुलढाणा जो है वो एक हिल पर अजंता रेंजेस पर सिच्युएटेड आहे. अजिंठ्याच्या रांगा. कुठे मराठी की हिंदी कशात राहू कम्फर्टेबल आपण? म्हणजे असं मी कसंही. ठीक आहे. तर अजिंठ्याच्या रांगांमध्ये अजिंठ्याच्या ज्या डोंगर रांगा आहे त्याच्यावर वसलेलं छोटं गाव आहे बुलढाणा. आता छोटं नाही राहिलं, आता आमचं गाव मोठं झालं आहे. पण आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा आमचं गावही लहानचं होतं. आणि त्या आजूबाजूला जे सगळ्या टेकड्या, नद्या, तलाव, जंगल त्याच्या आजूबाजूचे, त्याच्यावर आमचं सगळं बालपण तिथे गेलं. आणि नागपूरमध्ये जेव्हा मी लॉ करायला आलो 12वी नंतर इथे,
तेव्हा कळलं की अरे आपण जे लहानपणापासून जंगलात फिरतोय सगळं, याला नाव आहे छानपैकी ट्रेकिंग, आहे ना. जे काही आपण झाडावर चढलो आहे, इकडे तिकडे उड्या मारल्या आहे, त्यालाही छान छान नाव आहे. आणि त्याच्यात मजा तर यायचीच, बेसिकली लहानपणीची आवड होती. तर मग इथे NCC, नंतर नॅशनल ॲडव्हेंचर फाउंडेशनचे कॅम्प्स, असं करता 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 कॅम्पिंग मध्येच, म्हणजे जो कॅम्पला गेलो तर कॅम्पमधून बाहेरच नाही आलो, कॅम्पमध्येच राहतो मी अजूनही. छान. आणि तुझी स्वतःची कॅम्पसाईट आहे चेरी फार्म्स नावाची. तर नाव तर खूपच क्यूट आहे आणि मी सारखे त्याचे पिक्चर्स पण बघते. तर हां. टेल अस समथिंग अबाउट दॅट. आणि ती कशी वेगळी आहे? म्हणजे जनरल आपण कॅम्पसाइट्स बघतो तर त्या खूपच असं व्हेरी टिपिकल मिलिटरी स्टाईल असतात. तर तशी तुझी नाहीये. सो हाऊ हॅव यू मेड बिलकुल. इट डिफरंट? अँड हां. व्हॉट ऑल ॲक्टिव्हिटीज यू कंडक्ट ओव्हर देअर? तू मुलांना तिथे काय-काय शिकवत असतोस? तर हे आता गेल्या 15 वर्षापासून आम्ही CSE ऑलराऊंडर नावाचा एक परिवार, आता आमचा बराच मोठा झाला आहे. एक फॅमिली सारखे आम्ही बरेच जण, 50-60 जणांचा ग्रुप आहे. आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून रामटेक जवळ एक खूप सुंदर जागा बनवली आहे. नागपूरमधल्या बेसिकली सेंटर आहे पूर्ण इंडियाचं, आणि आसपास इथे बरंच ट्रॅव्हल करायला लोकांना सोपं आहे. तर इथून जवळ रामटेक नावाची जागा आहे, जिथे प्रभू राम 2दा येऊन गेले अशी आख्यायिका आहे. त्याचबरोबर जुने सगळे यादवाद, वाकाटका, सगळ्या जितकेही डेनेस्टीने आपल्या इथे राज्य केलेलं आहे, त्यांच्या सगळ्यांचे फुटप्रिंट्स तिथे आहे. कालिदासांचं तिथे मेघदूत जे आहे तिथे लिहिलं गेलं असं म्हटलं जातं. तर टेकड्या आहे, तलाव आहे, जंगल आहे. म्हणजे आम्ही गमती गमतीने तिथे जंगल है, पहाड है, शेरों की दहाड है, पंछी बेशुमार है, असं त्याचं वर्णन करतो. तर असं आमचं जे रामटेक आहे, तिथे आमची एक छान कॅम्पसाईट आहे, कॅम्प चेरी फार्म नावानी. आणि तिथे बऱ्याच ऍक्टिव्हिटीज चालवतो आम्ही, एरो स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स, लँड बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज. अगदी बेसिक छोटे छोटे ट्रेकिंग कॅम्पिंग पासून तर पॅरामोटरिंग, हॉट एअर बलूनिंग, पॅरासेलिंग, बोटिंग, कयाकिंग सारखे मोठ्या ऍक्टिव्हिटीज पण तिथे बरेचदा आम्ही करवतो. वाह! आणि तुझ्या मनालीच्या कॅम्पसाईट बद्दल पण थोडंसं सांग मला. मनाली का जो कैंप साइट है, मनाली का कैंप साइट भी बहुत हमारा सुंदर है. मनाली में कैंप एप्पल फार्म, मीन मनाली से एक 8 किलोमीटर आगे हमने एक शानदार एप्पल फार्म, वहाँ के हमारे एक मित्र है, उन्हीं का है वो जगह. तो केहर सिंह जी है, उन्होंने हमें एक एप्पल फार्म उनसे लिया है और उसको एक छोटे से कैंप साइट में कन्वर्ट किया है. मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं, पक्का एक किचन, डाइनिंग, वॉशरूम जितना शहर से जाने वाले बच्चों को जो फैसिलिटीज बेसिक लगती है, उतनी फैसिलिटीज वहाँ पर बनी. पूरा 360 डिग्री व्यू है वहाँ पर हिमालयाज का. और आसपास जो हिमालयाज की जो भी खासियत है, वाटरफॉल्स है, छोटे झरने है, जंगल है, स्लोप्स है अप डाउन जाने के लिए. एकदम रिमोट हिमालयन वो माउंटेन विलेजेस है छोटे छोटे, जहाँ पर हम बिल्कुल छोटे बच्चों को, 9 इयर्स और ऊपर के बच्चों को हम वहाँ पर लेके जाते हैं. और वहाँ पर एक बढ़िया प्रोग्राम उनके लिए हम डिज़ाइन किया हुआ है. आसपास छोटे छोटे होम स्टेज वगैरह भी, कई बार पेरेंट्स भी चल पड़ते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल ऐसा है कि आउटडोर तो सभी के लिए ज़रूरत बन गया है. तो वहाँ पर हम लोग ये प्रोग्राम्स करते हैं. राइट. सो व्हॉट आर युअर म्हणजे तू मुलांना कशा प्रकारे नेचरमध्ये आणायला बघतोस? म्हणजे तुमच्या कॅम्प साईटवर तुमचे प्रोग्राम्स कसे डिझाईन्ड असतात? किंवा मला वाटतं नॉर्मली आजकालची मुलं. आपल्या इथे आमचं जे बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आहे, आउटडोर एज्युकेशन, ॲडव्हेंचर एज्युकेशन, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, हे जे आजकाल खूप म्हणजे रिस्पेक्टफुली त्याचं नाव घेतलं जातं असे शब्द आहेत सगळे. और बेसिकली जो लोग आते हैं कैंप्स के लिए, तो वो उनको पता नहीं है कि किस तरह से नेचर एंजॉय किया है. बच्चों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो 30-40 साल पहले सब कुछ चीज़ें खराब करना शुरू की है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन केवल बच्चों को दिख रहा है. हम हर जगह जाते तो बोलते अरे यार 20 साल पहले ऐसा नहीं था, 30 साल पहले ऐसा नहीं था. पर हमने अभी बिल्डिंगें बना दी, वहां पर सारा कुछ प्लास्टिक हर जगह दिखेगा. तो बच्चों के मन में यही है कि हर नदी, हर वाटर बॉडी पोल्यूटेड है. हर एक सड़क जो है, हर एक रोड, हर एक अननोन डेस्टिनेशन, ये कुछ ना कुछ वहां पर गलत काम ही हो सकता है, या कुछ एक्सीडेंट या कुछ मिसहैप हो सकता है. तो उस मानसिकता से उनको हम निकालने की कोशिश करते. तो हम ओपन एडवेंचर कैंप फॉर बिगिनर्स ऐसा कॉल हम लोग देते हैं बेसिकली, कि बिगिनर जिन्होंने कभी कोई कैंप नहीं किया है, कभी घर से वो बाहर निकले नहीं है, ऐसे लोग बाहर निकल सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं. तो उनकी जो स्पेशल केयर करनी होती है, कि उनको प्रॉपर उनका सारा कुछ, लाइक उनके साथ एस्कॉर्ट्स, इंस्ट्रक्टर्स, अगर गर्ल्स पार्टिसिपेंट है तो उनके लेडी इंस्ट्रक्टर्स, वो भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस लोग. फिर जहाँ उनको लेके जाना है वो भी जगह पता होनी चाहिए कि कैसी जगह है, वो सारा कुछ, वो फिर काफ़ी चीज़ें उसमें ध्यान रखने वाली. तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ें प्लान करते हैं. राइट.
बट तुला असं का वाटतं की मुलांनी नेचर मध्ये जायला पाहिजे आणि काय जायलाच त्यांनी पाहिजे, म्हणजे जायला पाहिजे नाही, जायलाच पाहिजे. आता राईट असे कारण आता हळूहळू आपण इतकं शहरी होत चाललो आहे आणि पाश्चात्य जे वेस्टर्न कल्चर जो सब देख रहे हैं यहाँ वहाँ, उसको कॉपी करने के चक्कर में तो हम लोग काफी कुछ चीजें गलत भी करते हैं. तो वो लाइफस्टाइल भी हम लोग कॉपी करना शुरू कर दिए और अपना जो लाइफस्टाइल था इतना बढ़िया आउटडोर और नेचर के साथ इतना हार्मोनियस हम लोग रहते थे, वो चीजें छोड़ के हम लोग कुछ अलग चीजें करने लगे हैं. बच्चों पे इसके थोड़े वर्स्ट इम्पैक्ट है. बच्चों में ओवर कंफर्टेबल, ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर कन्वीनियंट जो लाइफस्टाइल है, ओवर हाइजीनिक भी मैं बोलूंगा. अभी तो कोविड की वजह से हाइजीनिक और बाकी सब चीजों के डेफिनेशन चेंज हो गई है, पर कोविड के पहले भी अगर आप देखेंगे तो भी बच्चों को ये जो एकदम ओवर कंफर्टेबल सेट में वो चलते थे, तो उसमें स्ट्रगल करना, जो कोई चीज पाने के लिए जो एक स्ट्रगल करना है, जो संघर्ष करना है, जो कोशिश करना है, कुछ एक अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो कोशिश करना है, वो कोशिशें ही हम लोग धीरे धीरे कम करते थे उनके लाइफ में से. कि भाई डर लग रहा है, साइकिल से मत जाओ, पैदल मत जाओ, अननोन जगह पर मत जाओ, अननोन लोगों के साथ मत जाओ, या अननोन लोगों से बात मत करो. ये इसका थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया था ये सब चीजें. तो बच्चों को इतना बड़ा उसका खौफ रहता था मन में कि वो बेचारे हर चीज से डरने लग गए थे. तो इसलिए अपने बच्चे, खास करके शहर में रहने वाले बच्चे, अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चे, जो नेचर का जिनका इंटरेक्शन होता नहीं है, उनका वो अगर प्रॉपर नेचर में जाते रहेंगे तो बहुत सारे उनके बेनिफिट्स है. मतलब फिजिकल बेनिफिट्स तो है ही उसके, लेकिन वैसे उनके पर्सनैलिटी पर भी उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव उनके लिए उसके बेनिफिट्स है, और उसके लिए उन्होंने जाना चाहिए. राइट. और हम लोग अभी बहुत देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल कोविड के वजह से ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन सेशन स्कूलिंग चल रहा है, बट otherwise also kids are always on mobile. They are even parents say that if you don't know something, search on YouTube or watch on TV or go on Discovery Channel and you will see something. But I think somewhere students are losing that imaginative power as well as the thinking power, and that what exactly nature is. मतलब वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आई गेस वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. तो हम लोग कितना यूट्यूब पे देखेंगे, अल्टीमेटली यू हैव टू गो देयर. यस, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल बहुत ही सही है. और मोबाइल या जो टेक्नोलॉजी थी, पहले एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी. बाद में हमने रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट भी उसमें ढूंढना शुरू कर दिया. बाद में अभी तो नॉलेज को ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया. एक ऐड आती है ना, बहुत सारी चीजें रहती है और वो कैसे रिप्लेस होती गई सारी छोटी छोटी चीजों से. तो ये उसमें जो भी है मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर में, इसमें जो भी है, उनके और हमारे बीच में एक स्क्रीन है. और वो स्क्रीन जो है, वो स्क्रीन कितना यूज करना है, मतलब कितना स्क्रीन टाइम देना है और कितना ग्रीन टाइम देना है, वो पता करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि हम लोग बने बेसिकली ये गाड़ियां चलाने के लिए या मोबाइल ऑपरेट करने के लिए नहीं है ना. जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम लोग एग्जैक्टली. घूमने फिरने वाले हैं लोग, और नेचुरली घूम फिर के ही हम लोग मजबूत, स्ट्रांग और मेंटल टफनेस और जो भी क्वालिटीज बोली जाती है, कॉन्फिडेंस से लेके हर चीज हम में आती है. ना कि कंप्यूटर के गेम में कोई चीज अचीव करके. और फिर कई बार आउटडोर में जाके अनवांटेड, लाइक जो प्लान नहीं है, ऐसी चीजें भी होती है ना कंप्यूटर गेम्स में, और साथ तो प्रोग्राम रहता है सब कुछ. तो वो भी दिक्कत होती है बच्चों को जब ज्यादा उसके मतलब उनके एडिक्ट हो जाते हैं. तो आप देखते हैं आजकल क्या होता है बच्चों के साथ, तो है ना. आजकल तो गेम्स वगैरह भी ऐसी है कि जो उनको उस तरफ पुश करते रहती है कि उसमें उनका अचीवमेंट ही उसमें है कि भाई कितने बच्चों ने अपना लाइफ खराब किया है वो गेम में. वो देख के तो ये तो बड़ी बुरी बात है. तो उसमें से निकलने के लिए बेसिकली आउटडोर और एडवेंचर ये बहुत अच्छा माध्यम है. क्योंकि वो नहीं करना है, उसमें थ्रिल है. बच्चों को बैठे बैठे उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, भले ही वो झूठा है, पर वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है कहीं ना कहीं. तो अगर वो नहीं देना है बच्चों को, तो उतना ही सशक्त, उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रांग कुछ तो भी देना चाहिए. और वो कुछ तो भी है एडवेंचर. क्योंकि एडवेंचर में वो थ्रिल है, एडवेंचर में वो एक्साइटमेंट है, एडवेंचर में वो सब कुछ है, वो वाव है एकदम. कितना भी मोबाइल और इसमें कनेक्टेड कोई है, वो अगर मदर नेचर के पास अगर जाता है, कोई एडवेंचर एक्टिविटी करने जाता है, एक सनराइज देख लेता है, एक स्नो पीक देख लेता है, एक पौधा देख लेता है, तो भी वो खुश हो सकता है. तो वो उसको रिप्लेस करने के लिए, उससे दूर करने के लिए कुछ समय के लिए ये बहुत अच्छा टूल है. राइट. आई थिंक वो घर में बैठ के वी हैव लॉस्ट दैट रियल थिंकिंग पावर कि एग्जैक्टली क्या है, या फिर द क्विक डिसीजन, या फिर
ये है, बहुत Okay. सारी चीजें, सोशल बॉन्डिंग स्किल देख लो बच्चों का, हाँ है ना, बस सोशल बॉन्डिंग स्किल आजकल बच्चे, हम तो ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल एनिमल है, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर्स और ये सब ज्यादा ऑपरेट करेंगे तो उसमें कोई सोशल इंटरेक्शन तो होता नहीं है, जो भी होता है वो तो वर्चुअल होता है। तो सोशली भी वो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे उनका सोशल बॉन्डिंग स्किल कम होता जाता है, नए लोगों में जाने का उनको मन नहीं करता। मतलब नए लोग के अपने अपने रिलेटिव्स जो अपने जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे या अपने जैसा अटायर नहीं, अपना थोड़ा सा, हम लोग थोड़े अर्बन हो गए तो अभी भी अगर कोई गांव में रुके हैं या वहां पे रहते हैं तो वहां भी अगर बच्चे जाएंगे तो वहां कंफर्टेबल नहीं रहते बच्चे, क्योंकि हाँ उनको ये चकाचौंध दिखती नहीं है जो स्क्रीन में देखते हैं। तो अपने अपने ही लोगों से भी वो दूर होते हैं बहुत बार। तो कहीं ना कहीं उनको जब रियल लाइफ सिचुएशंस फेस करनी होती है तो उनको वो जो स्किल है, वो स्किल कहीं ना कहीं उनमें ज़रूरी है। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में नए जगह जाकर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लिया, कोई चैलेंज फेस किया, कोई एक चैलेंज को पूरा किया और उसके बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, या अननोन 4 लोगों के साथ एकदम फट से उन्होंने दोस्ती कर ली अपना काम, तो आने वाले दिनों में अगर वो कोई बड़ा कोई बिजनेस भी कंट्रोल करता है तो भी उसको काम कराना है, ये सोशल बॉन्डिंग स्किल तो चाहिए, उसको कन्विंस कराना ही है, लोगों से निगोशिएट करना ही है, बात करना है, कम्युनिकेशन करना ही होगा, वहां पर केवल मोबाइल पे मैसेज भेज के नहीं होगा काम उसका। राइट, वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली। लेकिन अमूल जी, अभी तो हम लोग सब अर्बन सेटिंग में रहते हैं एंड नॉट नेसेसरी वी हैव दिस पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू नियर बाय नेचर प्लेसेस। तो हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या जी, हम लोग की घर में बैठे बैठे ही अपने किड्स को वो थोड़ा नेचर का एक बेस रेडी कर दे और क्रिएट दैट इंटरेस्ट इन नेचर और मे बी how to respect it and how to enjoy it. So how we can just inculcate that feeling? बहुत कुछ है करने के लिए, अगर हमारे पास कोई बड़ा एडवेंचर या कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है करने के लिए। एक प्रॉपर शेड्यूल हमने बनाना चाहिए पेरेंट्स ने, क्योंकि एक एज तक बच्चों को खुद आपको लेके जाना होगा, आपको खुद चेंज होना होगा उसके लिए। आप, क्योंकि बच्चे आपका सुनेंगे नहीं, वो आपको देख देख के आपको देख के आप जैसा करेंगे वैसा करेंगे, वो अनुकरण करते हैं बच्चे, हम लोग बोलते हैं कई बार। तो आपको अपना एक कुछ ना कुछ सेट एजेंडा उनके लिए प्लान करना पड़ेगा। जितना प्लानिंग और जितना स्किल आप बाकी बाहर की चीजें या कोई जॉब लेते हैं कोई किसी का करने के लिए, तो जितना वो मैनेज करने के लिए लगाते, उतना अपने बच्चों के लिए भी अपने को प्लान करना होगा। मॉर्निंग में देखिए, अर्ली मॉर्निंग अगर कहीं कोई ऐसा शहर है कि जहाँ कहीं नेचर नहीं है, अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठने से पहले 1 घंटा पहले अगर उठ जाते हैं, आप सड़कों पे निकलते हैं बाहर, तो आपको बिल्कुल शांत सेफ जगह मिलेगी। आप वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, कुछ एक एक्टिविटी वहां पर कर सकते हैं। ये तो आप डेली कर सकते हैं, है ना। वंस अ वीक कोई वीकेंड में आप थोड़ा शहर से बाहर निकल सकते हैं, आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे फार्म्स है, जहाँ पर चल रहा है फार्मिंग चल रहा है, बच्चों को वो दिखा सकते हैं कि देखो भाई राइस, अभी जैसे राइस कल्टीवेशन चलता है तो पैडी फार्म्स में ले जाओ, कैसे वो सारा कुछ मड बनाते हैं, कैसे वहां पर वो सारा उसका प्लांट लगाते हैं, किस तरह से वो कल्चर, अच्छा ये चीज वो हजारों सालों से कर रहे हैं, है ना। तो लाइक जहां से हंटिंग छोड़ा था हमने और फार्मर बने थे, तो वो उसी तरह से कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से चीजें, तो उस तरह से ले जाओ। अगर आपको और थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो कोई एग्रो टूरिज्म की जगह जाके एटलीस्ट वो एक पॉजिटिव फेस दिखा दो। वंस इन अ मंथ आप थोड़ा आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई डैम साइट है या कोई रिवर का बैकवाटर है या कोई बीचेस है कहीं पर, वहां ट्रेक वॉक कर सकते हैं। वंस इन अ ईयर आप और बड़ा प्लान कर सकते हैं, कहीं कोई सेंचुरीज है या टाइगर प्रोजेक्ट्स है या हिमालयाज है, या बड़ी चीजें कर सकते हैं। ऐसा डेली, वीकली, मंथली और एनुअल अपना अगर आउटडोर टाइम और एडवेंचर टाइम हमने अगर प्लान कर लिया, तो बहुत सारे ऑप्शंस है जहां पर आप अपना फैमिली के साथ जाके अपना एक अच्छी चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। या और मेरे ख्याल से हम लोग इवन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम होम व्हेन वी से, तो छोटा सा पौधा लगा दिया या फिर उनको बताया कि देखो अपने साइड में कितने बर्ड्स है, तो उनसे थोड़ी सी मुलाकात करा दी कि दिस इज व्हाट काइंड पौधा, ऑफ बर्ड्स वी हैव। या यस बिल्कुल, ये तो चीजें घर के अंदर हो सकती है। मतलब पौधा लगा दो, एग्जैक्टली। या सीड्स, आप लोग फ्रूट खाते हैं, हम लोग सीड्स को प्लास्टिक में रैप करके डस्टबिन में डालते हैं, है ना। एक सीड बॉल बना दो घर में, सीड से बच्चों को बताना है कि हम लोग नेचर के साइकिल का एक पार्ट है, ये फ्रूट जो है ये खाने के लिए दिया है, सीड जो है ये मिट्टी तक पहुंचाना है। तो वो आप वो एक एक्टिविटी कर लो, देखो बच्चे कितने एक्साइटेड रहते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे जितने फ्रूट्स खाएंगे सारे कुछ सीड्स लेके आते हैं, फिर हम लोग वो सीड्स जब भी कैंप जाते हैं, कहीं ट्रैक पे जाते हैं, तो ले जाते हैं सीड साथ में, जहां जहां पॉसिबिलिटी वहां पर उसको पौधा बना के। तो वो भी एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी चीज है ना। बर्ड वॉचिंग कितनी अच्छी एक्टिविटी, अभी आपने बर्ड वॉचिंग बोला, है ना। विंटर में इतने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं,
100 से ज्यादा बर्ड्स तो ऐसे भी कहीं पर भी जाके आप देख सकते हैं। अच्छी बुक्स अवेलेबल है, अच्छे मेंटर्स अवेलेबल है, क्लब्स है छोटे छोटे जो अपना बाकी काम करके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। तो वो सारी चीजें भी हमने जरूर करनी चाहिए। Yes. Aniket, I think wants हाँ to ask you a question. जी, अमोल जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हम लोग को बच्चों में इंटरेस्ट इनकलकेट करना चाहिए कि जिससे कि वो नेचर से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बाहर बिताएं स्क्रीन ग्रीन टाइम में। मैं जानना चाहता हूँ आपके क्या ख्याल है। जैसे जितना मैं समझता हूँ बच्चों की आजकल ज़्यादा, जैसे आपने कहा, मेंटालिटी और जो अवार्ड है, अचीवमेंट है, वो हम लोग को वर्चुअल से ज़्यादा मिलता है। हाँ जी। या जैसे कि वरना कोई एक्टर है या कोई हीरो है जिसको वो फॉलो करते हैं या कोई भी सेलिब्रिटी फिगर हो, तो यूजुअली उनसे इंस्पायर होके लोग ज्यादा चीजें करते हैं रादर देन उनको खुद चाहिए कि हम जाके कोई नया पहाड़। सो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे प्रणय का था कि प्रणय का पहला एक कैंप हुआ, वहां से उसने कहा कि नहीं मुझे ये बढ़ाना है आगे। सो बट जब प्रणय का पहला कैंप हुआ होगा या बाकी किसी भी माउंटेनियर का पहला कैंप हुआ होगा, तो शायद वहां पे एक इनहेरेंट डिजायर थी उसमें कि मुझे कुछ बाहर जाके कुछ नया ट्राई आउट करना है। तो आजकल के बच्चों में ज्यादातर इट इज बेस्ड ऑन अ हीरो और अ सेलिब्रिटी फिगर को देख के। सो हाउ डू यू थिंक कि शुड वी प्रमोट दिस कि सेलिब्रिटीज के थ्रू ही हम पुश करें कि हम ये कल्चर ज्यादा एक्सेप्ट हो, नेचर में जाना एंड ये, या शुड इट बी फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली जैसे आप कह रहे ये थे? बिल्कुल मतलब ये तो सैडेस्ट पार्ट है कि मूवीज में से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत पड़ रही है ना, बिल्कुल क्योंकि रियल लाइफ कैरेक्टर्स आसपास उनके दिखेंगे नहीं उनको रोल मॉडल बनने के लिए या उनको फॉलो करने के लिए, या मीडिया भी उस तरह से उसको रखेंगे कि ये सारा कुछ ये है भाई रियल, जो रियल है वो रियल है। और हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि जिन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा और वो एडवेंचर शुरू किया, या बिल्कुल उन्होंने देखा ये जवानी है दीवानी देखा और वो ट्रैक पे आए हैं, उनको बिल्कुल वो सर। जैकेट पहन वो जैकेट लाते हैं, वो बोलते हैं सर हाँ बूटा पर्वत कहाँ पर है, वो झंडा, मैंने बोला ऐसा होता नहीं है। मूवीज में तो वो फ्रीडम रहता है लिखने के लिए, तो वो सिनेमैटिक लिबर्टी लेके जी बहुत कुछ लिख देते हैं। जी बच्चों को जिस एज में कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि किस एज के लोग ये सब कर रहे हैं। मूवीज तो करेक्ट। अपने यहाँ पर सब बच्चे देखते हैं, तो मूवीज से इंस्पिरेशन होने का टाइम आने देना, ये पेरेंट की जीत नहीं है, ये हार है अपनी कि मूवीज में से देख के उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है। जिस जी एज में देखिए कैसा एक्सप्लोर करने का जो एक्सप्लोर करने की एक 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 सम एज में ही उनके वो चीज है ना, जैसा एक चाइल्ड है, चाइल्ड टू अडल्ट जाएगा, अडल्ट टू पेरेंट, उनका साइकोलॉजिकल जो सेटअप है, तो कहीं जी ना कहीं वो एक्सप्लोरर बनेंगे। जैसे उनका एक बार टीनेज शुरू हो गया तो उनको खुद करना है कुछ, है ना कहीं आप देखो बच्चे को, तो छोटा सा बच्चा होगा तो आप उसको हाथ पकड़ के ले जा सकते हो, उसको जैसे चलना जी आता है तो वो आपका उंगली छुड़ा देगा, उसको खुद करना है सारी चीजें। हम क्या बिल्कुल। करते हैं, हम उसको करने नहीं देते हैं कुछ, हम चलते हैं, अरे गिर जाएगा, अरे लग जाएगा, अरे वहां मत जाओ, कोई ले जाएगा उठा के, बिल्कुल क्योंकि हमने वही चीजें देखी है। तो अच्छे सेफ जगह ले जाओ उनको, खुद करने दो, घूमने दो, थोड़ा सा गिरेगा कहीं पे, थोड़ा घुटने पर लगेगा, आएगा, पता तो चलेगा उसको कैसे चलना है। मतलब बिल्कुल छोटा सा अगर उसको एक कैंडल का भी चटका लगता है या तो उसको लाइफ में जो तकलीफ होने वाली है उसमें से वो अलर्ट हो जाएगा। पर हम उनको बिल्कुल। करने नहीं देते, इसलिए बेचारे फिर मूवीज में जाते हैं, फिर वो हीरो हीरोइन को करते हुए देखते हैं एक्सप्लोर, तो वो उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि बिल्कुल पापा, अभी पापा तो 40 का होता है पर उसको 47 के शाहरुख सलमान अच्छे लगने लगते हैं, है ना, क्योंकि पापा 40s में ही 60 हो गए हैं। पापा ने अपना तो सारे कुछ जूते टांग दिए ट्रैकिंग के, तो पापा बिल्कुल को पहले अपने ट्रैकिंग के शूज लगाने की जरूरत है। और चल क्या है, बच्चे की फिजिकल कैपेसिटी और अपने फर्क रहता है, आप उसको करा सकते हैं। एटलीस्ट आप अच्छे चीजें देखो, अभी मेरा बेटा है वो 13 है, और वो प्रणव, और मैं तो ज्यादा करता नहीं हूँ फिजिकल एक्टिविटीज, तो प्रणव है, यश है हमारा, उनके साथ चलते रहता है। तो 200-300 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेगा इनके साथ, या लास्ट टाइम जाके कहीं पर उसने मतलब ट्रैकिंग तो काफी करता है पर बाकी भी चीजें की, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी, कनेक्ट कर दिया, एक 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 लेवल तक कंट्रोल रख के उसको फ्री कर दो भाई, तब वो जाके बिल्कुल। उसको पता नहीं लगेगा कि हीरो क्या करते हैं, ऐसा चीज है। मैं नहीं दक्ष बिल्कुल के सही साथ बात। तो हम लोग
यहाँ पे गए थे, सांची में गए थे, एंड आई वाज लिटिल वंडरिंग कि इसको ये एरिया अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी, ही वाज सो इंटरेस्टेड कि मोर देन anyone else, he was telling me ki didi, please, we will take that guide and listen to what he's saying. Yes, And yes. Still, was he very still remember that Sanchi Stupa wala trip, your trip. Very yes, nice. yes. And he clicked wonderful pictures, and I think it is because of your training कि इतना छोटा बच्चा एक इतना हिस्टोरिकल साइट पे जाके इतना इंटरेस्ट दिखाता है, वरना आजकल के बच्चे इज लाइक मुझे लगा कोई बोलेगा कि दीदी आप जाओ, मैं कुछ और गेम्स खेलता हूँ, बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को एक्सपोजर देना, एक लिमिट तक अपना जितना कैपेसिटी है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही देना है, उसके बाद उनको फ्री कर देना है कि भाई आप करो, आपको एक्सप्लोर करो, आप खुद हैंडल करो चीजें, गलतियां करो, थोड़ा बहुत गलत करेगा कुछ ना कुछ, तभी तो लर्निंग उसमें से होगा। और हमने क्या कर दिया, उनका स्ट्रगल निकाल लेते हम लोग, बिल्कुल ही एकदम स्मूथ, बिल्कुल वेट्रीफाइड कर दिया है उनका रूट, तो फिर उनको नेचुरली ये चीज है अप डाउन पर चलने का ये नहीं रहेगा उनका। Absolutely. And I think he had this lot of confidence as well कि I'm going with someone new, but he didn't have that because he was very confident कि ठीक है कोई नया है मेरे साथ लेकिन मैं handle कर लेगा। So that is what people should, this kids should learn कि हम लोग कहीं भी जाए तो we have this composure, we have this practical thinking, we know how to deal with a person. So we had a good age gap, but then it never felt, there is a disconnection. So we were sharing a lot of things, and I think it all comes because the moment we go out and talk to people at different age groups, and that's where the maturity starts coming in, and we try understanding each other. केवल दक्ष के लिए ही नहीं, हम ये CSE ऑलराउंडर ये एक प्लेटफॉर्म ही ऐसे बच्चों के लिए है कि जो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और पेरेंट्स को भी पता है कि एक रिलायबल लोग है साथ में, आप भाई बच्चा जा रहा है वहां पर तो सेफ रहेगा, भला ही कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं करेगा, छोटा एडवेंचर करेगा, पर उसके लिए वो बड़ा होगा, है ना। वो आएंगे तो सीधा अभी प्रणव के बारे में देख के पढ़ के लोग आते हैं, सर माउंट एवरेस्ट समिट करना है, कैसे करेंगे हम, तो उनको शुरुआत जो है वो उनको प्रॉपर वे से उनको गाइड करके ही, क्योंकि उनका जब समय आएगा तो वो क्लाइम कर लेंगे माउंट एवरेस्ट, है ना। पर लोगों को आजकल बहुत क्विक चाहिए रहता है, तो वो उनको वो जर्नी एक बार शुरू करने पर ही वो थोड़ा हम्बल हो जाते हैं कि नहीं इतना इजी भी नहीं है कि आप मूवी में देखो कि 2-2.5 घंटे में पूरा एक्सपीडिशन हो जाएगा, तो शुरुआत यहीं से उनको करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटा एक्टिविटीज में उनको वेलकम करते हैं हमेशा ही। राइट। And which all other activities you do on the on your campsites other than mountaineering or rock climbing? बेसिकली ट्रेकिंग कैंपिंग के बहुत सारी एक्टिविटीज है ट्रेकिंग कैंपिंग के अलावा। साइकिलिंग बहुत सारा करते हैं हम लोग कि बेसिकली जिसमें रोड ट्रिप्स है, मींस मल्टीपल डेज, कई किलोमीटर के साइकिलिंग के प्रोग्राम्स है, छोटे प्रोग्राम्स है। इवन हमने उसको इजी थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि एक्सेप्टेबल करने के लिए, उसको थोड़ा एक्सेप्टेबल करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कई मोबाइल सेटअप भी बनाए कि हम लोग प्रीमाइसेस जहाँ लोग रहते हैं उस प्रीमाइसेस में जाके भी कई बार ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। और बाकी हमारे पास एरो स्पोर्ट्स भी है बहुत सारा। और इकडे या 1 मिनट, विष्णु मनोहर जी है, विष्णु मनोहर जी हमारे पेरेंट है, और हम इनके बच्चे भी कैंप्स में आते हैं कई बार। तो विष्णु बाबू बोले बारिश हो रही है तो मैं कुछ लगा दूं, छत डाल रहा था उसमें, तो अरे बोले मेरी मीटिंग शुरू है, बोला इसीलिए मैं छत डाला, मीटिंग कंटिन्यू रखो। निकाल दो कोई बात नहीं सर। ये तो इट्स लाइक एन सोने पे सुहागा कमिंग टू अ शो, टोटल सरप्राइज। चलो वाओ, ये 4 चांद लग गए हमारे शो को। अरे क्या बात है, यानी कि एडवेंचर आउटडोर एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंस। कल ही हम लोग बोट राइड पे गए थे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैंने कल मैं जब गया तो हालांकि गत 4-5 महीनों से बहुत परेशान था, और सभी लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान था। बट हुआ यूं कि बच्चों के लिए गया मैं, और जाने के बाद 5 महीने की एनर्जी और अगले 5 महीने की एनर्जी वापस लेके आई। इतना बहुत राइडिंग, जो बोट राइडिंग हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाओ, दैट वाज लाइक रियली गुड। यस, तो I think so being in nature is totally refreshing. या एब्सोल्युटली सारे मच की दवा है नेचर, कभी भी ध्यान में रखो। हाँ, तो आप मीटिंग कंटिन्यू करें, मैं मेरा काम करता हूँ, ठीक है।
चलिए, थैंक Thank यू, you, नाइस sir. मीटिंग, Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, या थैंक यू। हाँ। अभी लॉकडाउन जस्ट खत्म हो रहा है तो बहुत सारे ग्रुप्स है हमारे जो नोन लोग हैं या आसपास के, उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, सब कुछ भुला देता है। कल विष्णु जी की फैमिली पूरा बच्चों के साथ आए, एक बोट राइड किया, कुछ एक्टिविटी की, एक छोटा सा ट्रैक कर लिया, और छोटे छोटे जैसे ग्रुप गेम्स होते हैं कैंप में, कुछ गेम्स खेले। तो मतलब उनका कहना तो यही था कि कोरोना का जो इतना स्ट्रेस रहता था कि एक फियर कि हर जगह जा रहे तो तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा, तो आउटडोर में ये सब चीजें, ये बेनिफिट्स है। और आप देख रहे उन्होंने आके लाइव बात कर ली सबके साथ। Yeah, that was fabulous. वो तो हमें आपका फिर एक लाइव ये भी मिल गया कि लोग आपको कितना चाहते हैं। तो मजा ही आता है बहुत ज्यादा। इनका Yes. तो है, बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग है सीएसी ऑलराउंडर के लिए। बेसिकली विष्णु जी की रसोई जहाँ पर ऑफिस है हमारा, या रामटेक में जहाँ पर जायसवाल फैमिली के पैटर्नेज में हमारा सारा एक्टिविटी चल रहा है, वहाँ पर सारे सेटअप्स अवेलेबल करके देना या सपोर्ट, क्योंकि एक्टिविटी अभी भी इतना एकदम हम इसी सेगमेंट में करते हैं। योर मेन स्ट्रीम टूरिज्म एक्टिविटीज ज्यादा हम लोग करते नहीं है। आउटडोर एजुकेशन या एडवेंचर एजुकेशन थोड़ा सा इसको अभी सपोर्ट की जरूरत है, अभी भी जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स इस एरिया में नहीं है, अवेयरनेस। तो ये सब लोग हैं, इनके ब्लेसिंग से ये सब चीज बहुत अच्छे से चल रही है। Great. अमोल जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा जो मुझे कई बार सताता है जब भी हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं। जी। तो ये टूरिज्म से ज्यादा रिलेटेड है। जब हम चाहते हैं कि लोग जाके नेचर देखें, जैसे अब लद्दाख का प्रॉब्लम हो गया है कि सभी लोग एडवेंचर टूरिज्म में अगर हिमालय जाते हैं तो काफी सारे लोग लद्दाख भाग जाते हैं कि हम बाइक राइड करेंगे एडवेंचर के लिए। तो और उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। बहुत पानी की ज्यादा। शॉर्टेज हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है यस, कई बिल्कुल होगा। सारे जगह। और आई थिंक ये सारी जगह होगा, मतलब शायद ये अलग लेवल पे होगा मनाली में, बट मनाली में भी होगा और है हर किसी जगह भी। पर। हाँ बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा कि आगे जाते हुए हम कैसे, जब एडवेंचर एक्टिविटी के लिए एक जगह का चुनाव करें कि हम इस जगह जाके एक एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या क्या चीजें देखें और किसके साथ जा रहे हैं। तो उस आदमी की फॉर एग्जांपल एक तो एक्सपीरियंस होगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे कि उसकी कितना ट्रेंड है अच्छे से, और इसके अलावा वो कंपनी कितनी उस लैंडस्केप को समझती है या वहाँ के लोगों से जुड़ी है, वहाँ के प्रॉब्लम से। तो आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि जब आगे बच्चे जब भी निकलेंगे अब, क्योंकि कोविड के बाद जैसे ही लोग वापस घूमना चालू हो, तो किस तरीके से एक अच्छी एडवेंचर कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने जो क्राउड की बात की। क्राउडेड प्लेसेस, जितने टूरिस्ट प्लेसेस क्राउडेड है और वहाँ पर जो नुकसान हम लोग पहुँचा रहे हैं, तो कंपनी ट्रैकिंग या एडवेंचर कंपनी चुनते वक्त कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे मेन बात है कि उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की फिलोसॉफी उनकी है या नहीं। मीन्स एक तरह लाइक हो गई भाई कि पैकेज के ऊपर पैकेज चल रहे हैं, और लाइक बाकी किसी को यहाँ से ग्रुप बुक कर लिया, उधर हैंड ओवर कर दिया, उसने और कहीं हैंड ओवर कर दिया, उनको पता ही नहीं है उसका क्या सोल है, ऑब्जेक्टिव क्या है जाने का। हर कोई तो वहां पर एक जैसे ऑब्जेक्टिव से नहीं जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करने की जिनकी फिलोसॉफी है, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। इको टूरिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इको टूरिज्म मीन जिस जगह में हम लोग जा रहे हैं उस जगह का भी कुछ रिस्पेक्ट हो, और नो डाउट हम तो एंजॉय वहां पर करेंगे, हम हमारा रिक्रिएशन होगा ही, जगह को कम से कम कोई नुकसान ना पहुंचाए। रजिस्ट्रेशन हो, कंपनी प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। आजकल तो बहुत सारे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके एसोसिएशंस भी है जो कि कंट्रोल करते हैं अपने मेंबर्स को एक अच्छी प्रैक्टिसेस करने के लिए, वो होनी चाहिए। ट्रेंड मैन पावर, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू होता है कि सर्टिफाइड है लोग, एक्सपीरियंस है प्रॉपर, उनका ट्रेनिंग अपडेट हो रहा है, सारा कुछ वो भी देखना चाहिए। लेडीज गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए लेडी इंस्ट्रक्टर्स का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब एज अ कंपनी वो अगर एक फिलोसॉफी, एक लेवल की कंपनी अगर है तो वो ये सब चीज़ों की ख्याल रखते ही है, पर हमने भी अपने तरफ से ये सब चीज़ देखनी चाहिए। इंश्योरेंसेस को भी हम लोग बहुत आजकल इग्नोर करते हैं, तो प्रॉपर अपने जर्नी ट्रैवल इंश्योरेंस जो होते हैं, जर्नी इंश्योरेंस जो होते हैं, बाकी के भी सब चीज़ें वो भी देखना चाहिए। और लीव नो ट्रेस नाम का भी एक एक्टिविटी चलता है, तो वो भी एक बिल्कुल अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि लीव ओनली फुटप्रिंट्स, टेक ओनली फोटोग्राफ्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल कम से कम अपना इम्पैक्ट वहां पर रहे। कहीं पर भी जाएंगे तो पर सैडली क्या होता है कि हम बच्चों को एक्सपोजर ही ऐसा दे रहे,
आजकल छोटे छोटे बच्चे हाँ भी कहाँ जाके आए, तो उन्होंने पूरा दुनिया घुमा रहता है, पर उनको पता नहीं कि वहां पर होटल में जाकर अपनी चीजें छोड़ के आना और जंगल में कैंप करते हुए अपनी चीजें छोड़ के आने में फर्क क्या है। होटल में तो लोग है उसको उठाने के लिए, सही जगह उसको डिस्पोज करने के लिए, पर एक जंगल में एक छोटा सा कोई बोतल का कैप भी आप छोड़ते हैं तो भी वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, वहाँ के नेचर को किस लेवल तक हार्म कर सकता है। आजकल इतनी सारी फोटोज और ये सब आती है, तो वो बेसिकली हमने थोड़ा सा बच्चों को भी, नो डाउट आप हॉलीडेज पे जाइए, बड़े बड़े क्लब्स का मेंबरशिप लेके कीजिए, पर छोटी 2-3 एक्टिविटीज तो भी, बेसिक ट्रेकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन जाए। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन जाए, आने वाले दिनों में वो एक ट्रैवल करने जाएगा तो वो एटलीस्ट कहीं पर चीजें खराब नहीं करेगा, इस तरह से होना चाहिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दोनों चीजें हैं, कंपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा चुनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम भी हमारे आसपास भी एक चेंज हमेशा पॉजिटिव साइड में लाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। right. And Amol Dada, can you also share with us, you do a lot of work into snake conservation and you have done work on tiger save campaigns. तो आप वो सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि आप क्या क्या काम करते हैं। कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन भी CSC ऑलराउंडर का एक हम लोगों ने काफ़ी उसमें काम किया है। बेसिकली जब हमने शुरू किया था काम, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में ट्रेंड रेस्क्यू टीम्स और उनके ट्रीटमेंट सेंटर्स वगैरह टाइप में सेटअप नहीं हुआ करते थे। तो कहीं पर भी कोई कुएं में टाइगर गिरा है, या कहीं पर कोई मंकीज फंसे है बैक वाटर में, या कोई बर्ड है कहीं पर, आजकल ये चाइनीज मंजा तो अभी आने लगा है, पर बर्ड्स फंसते थे पहले भी, कि कोई इंजरी हुई है किसी को, तो वहां पर वो विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट जाके अपना रेस्क्यू करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि मंकीज रेस्क्यू करने गए अपना बोट लेके, तो मंकीज ने जंप कर दिया बोट पे, इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं लगाए हुए, तो इनको ही नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं होती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरह के रेस्क्यूज में जब हमें बुलाना शुरू किया, खैर स्नेक्स वगैरह में तो हमने ज्यादा काम नहीं किया है, पर हम लोगों ने बर्ड रेस्क्यू वगैरह में काफी काम किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सारे इक्विपमेंट होते थे, हेलमेट, हार्नेस, कैराबिनर्स, रोप्स है, टॉर्चेस है, बाकी गियर्स है, और ट्रेन टीम है। तो लाइक हम लोग कॉल पे जाते थे, हम लोग कई बार बर्ड्स को रेस्क्यू करते थे। अभी हाइट पर है, अराउंड 60-70-100 फीट पर है। कहीं आउल फंसे तो हमारे लोग रैपल करके उतर रहे, कहीं पेड़ों पर क्लाइंब कर रहे, वहां से बर्ड को निकाल के उसको ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचा रहे। इस तरह की काफी एक्टिविटीज हमने की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमको अपॉर्चुनिटी एक बार एक टाइग्रेस रेस्क्यू करने की भी मिली थी, जहाँ पर एक ड्राई वेल में एक टाइग्रेस गिरी हुई थी। तो लगभग 20-25 फीट नीचे वो टाइग्रेस थी, और लैडर वैडर वहां तक पहुंच नहीं रही थी। तो हम लोगों ने फिर रैपलिंग जो एक्टिविटी होती है, रैपलिंग मींस टू कम डाउन विद द हेल्प ऑफ रोप, रैपलिंग करके हम लोग नीचे वहां पर उतरे, उन्होंने ट्रैंकुलाइज किया था, और सारा हमारा टेप स्लिंग वगैरह लगा के, प्रॉपर नॉट वॉट लगा के, उसको बांध के नेट पे रख के ऊपर निकालने में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प की थी। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो कि लाइफ टाइम मेमोरीज होती है उसमें, और एक हमें भी प्राउड फील होता है कि अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एडवेंचर एक्टिविटीज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है ये हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, है ना, कि लाइक अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि कोर्सेस करके अपने अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, पर इस तरह के भी कंजर्वेशन में भी इसका इम्पैक्ट है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अभी लेटेस्ट में एक प्रोग्राम भी हुआ था, तो PCCF और जो फॉरेस्ट मिनिस्टर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था काफी इस एक्टिविटीज को। हम लोग उसमें काम करते रहते हैं काफी। राइट, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी या स्पोर्ट्स या फन काइंड ऑफ एक्टिविटी ने सोच के, तो ये तो किसी की जान बचाने के काम आ रहा है। तो बिल्कुल 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 है, तो बहुत सारे जगह पर है एप्लीकेशंस, तो जो है सब एक्सप्लोर करते रहना चाहिए जितना मिला है अपॉर्चुनिटी काम करने का। राइट, और आप जो ये ट्रेनिंग अपने पूरे आर्मी और एयरफोर्स, पुलिस फोर्स को देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें। हाँ, हम लोग नागपुर सेंटर है, और वैसे यहाँ पर काफ़ी है, जैसे एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड है, या गार्ड रेजिमेंटल सेंटर है, NCC का ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यहाँ पर है, या NADT है यहाँ पर जो नेशनल एकेडमी फॉर डायरेक्ट एक्सेस है, या एक्साइज डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़, देखिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ का जो एक सबसे जो अलगपन है वो है रिस्क, इसमें रिस्क है। तो हम हमेशा ही ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि भाई इसको ये ऐसे खुद होके करो मत कुछ, जिससे नुकसान हो जाएगा, कुछ गिर जाता है कोई या कुछ, तो सेफ्टी के लिए उनको एक्सपर्ट की हमेशा जरूरत होती है। तो वो बाकी सिलेबस उनका चलाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं।
और हम लोग एक अच्छा ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया में। तो हमारे पास कई सालों से ये सब काम आते हैं। तो उनको जहाँ पर भी ऐसे हॉट एयर बलून कराना है, या पैरासेलिंग कराना है, पैरामोटरिंग कराना है, या उनको ट्रैकिंग विलेज विजिट कराना है इंटीरियर में, या कहीं टीम बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि एक डेवलपमेंट का भी स्ट्रॉन्ग टूल है। तो जो लोग आजकल जानते हैं आउटबाउंड प्रोग्राम जो चलते हैं जितने भी, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो अपने एम्प्लॉयज़ को इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए या उनको एक प्रॉपर एक्सपोजर देने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वगैरह थीम पर चलाते हैं प्रोग्राम। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है काम का, तो अच्छा है। Right. So you have worked in so many aspects of adventure tourism, and not just being a tour operator and taking kids over there and doing a very typical Manali trek. I think this is so wonderful. So आपके जो इतने सारे एक्सपीरियंस हैं उसमें से आपका कोई एक पर्टिकुलरली मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा तो आप प्लीज शेयर करेंगे, कोई स्टोरी, कोई थ्रिलिंग स्टोरी। और आप नागपुर के जंगलों में भी काफी घूमते रहते हैं और टाइगर वगैरह देखते रहते हैं, तो प्लीज कोई तो एक्साइटिंग स्टोरी होनी ही चाहिए। बहुत कुछ है। मैंने जैसा टाइगर वाला बताया कि टाइगर का रेस्क्यू का अपॉर्चुनिटी था बहुत अच्छा। या एक बार मंकीज थे, अराउंड 35 मंकीज थे जो कि बैक वाटर में फंसे थे। तो 3-4 दिन हमारा टीम था पानी में। हमने इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाए थे और राफ्ट में बैठ के वहां तक पहुंच के उनको जैसे तैसे निकाला। बाकी तो एक्सपीडिशन जो एडवेंचर और जो ट्रैवल करता है, आप खुद भी ट्रैवल करते हैं, आपको पता है कि ट्रैवल और ये इस टाइप ट्रैवल मेक्स यू स्पीचलेस एंड देन इट टर्न यू इनटू अ स्टोरी टेलर, है ना। तो स्टोरीज तो बहुत सारी है, हर एक कैंप की एक अलग स्टोरी बनती है। और लोगों के साथ तो आपको पता ही होगा कि जैसे कई बार कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं मिसहैप होता है, कहीं सपोर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसे लद्दाख चले जाओ आप, तो वो रोड पर पानी बहते रहता है दोपहर के बाद। तो जो नए राइडर्स होते हैं उनके बस की बात नहीं होती है वो उसमें से बाइक डालना। तो फिर वहां पर मजा आता है कि लाइक उनका पूरा लाइक इतना पानी होगा और उसमें से आप बाइक्स निकाल रहे हो और वो सारी चीजें, तो मजा ही आता है। पर मेन ज्यादा खुशी बच्चों को कॉन्फिडेंट जब उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। कोई बच्चे के लिए छोटा सा रिवर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस हो, एकदम फास्ट फ्लोइंग वाटर में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर निकलना, और जब पेरेंट कॉल करके बताता है कि सर क्या बच्चा खुश है मेरा, तो बहुत और मजा किया, उन्होंने काफी कुछ उन्होंने सीखा है आपके यहाँ पर। तो हम इंस्ट्रक्टर्स और सब टीम जो है सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं। बिल्कुल। अमोल जी, आप जो बता रहे हो बिल्कुल, मतलब हर चीज मुझे अपनी आंखों के सामने विजुलाइज हो रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि नेचर से जुड़ना बहुत अनिवार्य है बच्चों के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली इतने सालों में आपके पास कोई कोई स्पेसिफिक बच्चे हैं, जैसे आप प्रणव है, जो प्रणव माउंटेनियरिंग में हो गया, तो सीएसी ऑलराउंडर की तरफ से और भी कुछ बच्चों के एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे जिन्होंने एक अपना करियर बना लिया और नेचर से भी जुड़े हैं या एडवेंचर से भी जुड़ के उन्होंने अब एक अपना ग्रोथ बना लिया है? बहुत बहुत है, हर जगह से बच्चे आते हैं और एडवेंचर से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो नेचर से जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो लेके जाते हैं। हम तो एक केवल माध्यम है। कुछ साल पहले की बात है, हमारा एक स्टूडेंट था, उनका नाम था कैरन डिसूजा। उनके में था एक छोटा सा कैंप हमारे साथ पचमढ़ी में किया ट्रैकिंग का। अभी सारा कुछ ऑफिसर्स में हमारे पता है, वो लोग कॉलोनीज में रहते हैं, सिक्योर्ड कॉलोनीज में, तो बहुत ज्यादा आउटडोर एक्सपोजर बच्चों को रहता नहीं है। कैरन भी वैसा ही था, एकदम बढ़िया, फैमिली भी बहुत ही अच्छे से लोग थे। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर नागपुर में वो लोग रहते थे। तो वो छोटा सा पचमढ़ी का एक एडवेंचर कैंप होने के बाद उसने घर में बात की कि भाई वो एडवेंचर में कुछ करना चाहता है। तो घर वाले तो नेचुरली चीज है, एयरफोर्स ऑफिसर है, इतना बड़ा पोस्ट है, वो तो नेचुरली चाहेंगे कि बच्चों का भी इंस्पिरेशन या इंक्लिनेशन उस तरफ रहे। तो फिर लोग थोड़ा परेशान हो जाते, फैमिली कह रहे हैं तो क्या एडवेंचर की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पूरा स्काई इज द लिमिट है एयरफोर्स अगर ज्वाइन करता है तो। बोला सर वो बता, मतलब वो पूछ नहीं रहा है, उसने बता दिया है, तो क्यों ना उसको सपोर्ट किया जाए। तो कैरन ने फिर बेंगलोर गया, वो बेंगलोर में उसने वाइल्ड लाइफ और ये सब बीएससी वगैरह उसका जो ग्रेजुएशन होने के बाद में एक दिन फोन किया कि सर मैं आ रहा हूँ नागपुर। मतलब ठीक है आ जाओ, फिर मिलेंगे यहाँ पर ऑफिस में, चाय वाय पियेंगे टाइप में। बोले नहीं सर मैं 3 दिन पहले ही निकला हूँ साइकिल से और कल सुबह पहुंच रहा हूँ 8 बजे 0 माइल। नागपुर में 0 माइल है यहाँ पर एक, तो वहां पर मतलब आप देखिए उसके दिन के बाद कैरन साइकिल से बेंगलोर से निकल के नागपुर पहुंचा। नागपुर में हमने बढ़िया बुके वुके देके उसको वेलकम किया। वो उसके साथ एक और दोस्त को लाया था जो लाइफ में घर से पहली बार निकला था, वो भी साइकिल पे।
उसको साइकिल से बेंगलोर से लाया था साथ में। कैरन ने वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाद में उसने बहुत सारी जो ये अल्ट्रा रनिंग करने वाली कंपनीज है और अल्ट्रा रनिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ आता तो बोलता सर मैं 25 दौड़ता हूँ, 40, 50 दौड़ता हूँ, 100 दौड़ता हूँ। अल्ट्रा रनिंग तब मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन बेंगलोर में तो चीजें काफी नेक्स्ट लेवल चीजें नागपुर के कंपैरिजन में। तो यार अल्ट्रा रनिंग क्या होता है? बोले सर जंगल में जैसे हम ट्रैक करते हैं वैसा उस पर दौड़ते हैं। तो बढ़िया बढ़िया बात है। बाद में तो डिसूजा साहब जो थे उन्होंने भी काफी उनको सपोर्ट, पूरा फैमिली उसको पूरा सपोर्ट किया। कैरन डिसूजा माउंट ब्लांक चैलेंज दौड़े। कैरन डिसूजा ने बाद में स्पार्टन रेस पूरे करने वाले पहले इंडियन वो बने। कैरन डिसूजा अभी इंडियन टीम में है, अल्ट्रा रनिंग की टीम में है। और कैरन अभी एक बहुत सारी कंपनीज जितनी लोगों को दौड़ने के बाद दर्द देती है वो सारी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर है वॉलिनी वगैरह के। उसके ऊपर उसकी फोटो आती है, अगर आपने देखी होगी कि स्नो के बैकग्राउंड में ऐसा एक दौड़ता है, मनाली में ही रहता है अभी। और काफी जब भी बोलेंगे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आते रहते। तो ऐसा एक कैरन है, प्रणव है, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चे आते हैं। जैसे हमारे पास में जुवेनाइल डायबिटिक एसोसिएशन के साथ भी हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो एक बच्चा आया था जो डायबिटिक था, उन्होंने पेरेंट्स ने बताया नहीं, हमें भी पता नहीं था। अभी हम लोग उसको जो रेगुलर एक्सपोजर है वो देते जा रहे थे। एक दिन उनका फोन आया कि अरे सर बच्चों को मैं आपको बताना चाहते थे। बोले कि बच्चा थोड़ा डायबिटिक था और वो इंसुलिन पंप वगैरह बॉडी में लगा हुआ है। मतलब आपने साहब बताया नहीं, अगर कोई ठंडा पानी है कुछ, हमने और ज्यादा ख्याल रखा रहता। नहीं बोले हम चाहते नहीं थे कि अलग कुछ ट्रीटमेंट के पेशेंट करके ट्रीट करे या कुछ ऐसा भाई वीकनेस है करके ट्रीट करे, पर कैंप बहुत अच्छा है और अच्छा एक्सपोजर मिला और बच्चे ने मजा किया है। तो बस, तो फिर क्या है, पेरेंट को जो खुशी रहती वही खुशी, हमारे खुशी का भी वेवलेंथ लगभग वही होता है कि भाई बच्चे जाके एटलीस्ट थोड़ा सा इंस्पायर होके जा रहे, सेंसिटाइज होके जा रहे, आउटडोर के लिए, नेचर के लिए प्यार मन में लेके जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज आगे करने वाले हैं। क्योंकि आते तो ये जवानी है दीवानी देख के है, पर जाते वक्त उनको जो मैजिक है, मदर नेचर का जो लव एंड केयर है, वहां पर उनको एक बार वो हॉबी मिल जाता है तो उनको तो पता है कि ये एनर्जी उनको बहुत दूर तक पहुंचाएगी। काफी बच्चों के साथ हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो अच्छा कि आपने पूछा तो सब ये चीजें आई है। सॉरी। बिल्कुल, थैंक यू अमोल जी। जी यस बिल्कुल। तो आप तो बस मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग एन स्मॉल एक्सपीरियंस, बट आपने तो लोगों की जिंदगी बदल दी है, लोगों को एक नया करियर अपॉर्चुनिटी दिया है। बच्चों को भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स टू रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग आउटडोर्स, बीइंग इन नेचर, लर्निंग ऑल द स्मॉल थिंग्स। एंड पेरेंट्स भी कभी कभी जानते नहीं है या फिर इग्नोर कर देते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट होती है अपनी लाइफ में, कि कहाँ हम बच्चों को थोड़ा सा वो मौका दे कि वो खुद से खुद जाके कुछ अपना करे, टेक दैट एक्सपीरियंस, बी ऑन योर ओन, गेट इंडिपेंडेंट एंड मेक देयर ओन डिसीजंस। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ले, थोड़े से डर जाए। आई थिंक इट एडवेंचर इज ऑल अबाउट दैट एंड नॉट जस्ट अबाउट going to a particular mountain and doing something. देखिए शहरों में तो ऐसा माहौल है बिल्कुल डर का, और पेरेंट्स अलाउ मतलब नहीं करने चाहिए। पेरेंट्स ने भी अलाउ, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बच्चों को छोड़ दो खुला और जो चाहिए वो करने दो टाइप में, लाइक क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है। सैडली अपने यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जो रोड पर जो ट्रैफिक सेफ्टी है। आप देखिए इतना बड़ा कोविड से हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड, लेकिन आप लोगों का बिहेवियर देखेंगे बाहर, आज भी आपको सिग्नल तोड़ने वाले लोग मिल जाएंगे, ट्रिपल सीट चलने वाले लोग मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ अपना गंदा करने वाले लोग मिल जाएंगे। सारी चीजें अभी भी हो रही है अपने यहाँ पर। तो ये पहले भी था बच्चों के लिए सेफ, एक सेफ नेचर के जो लैंडस्केप्स है, आप लेक साइड देख लो, वहां पर लोगों का क्या बिहेवियर होता है। इतना बड़ा बड़ा म्यूजिक वहां पर लग जाता है और वहीं पर ही खाने के बाद हमने थर्माकोल की प्लेट से लेके ये सब चीजें जब तक इंप्रूव नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली कि लेक को एंजॉय कैसे करना है। उन्होंने ये देखा है बस गाने लगा, शर्ट निकाल दो और नाचो वहां पर, है ना। हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की उनको चीज बताने की कि भाई ये सनराइज सनसेट होता है तो लेक के पास जाने से कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको होगा, है ना। आप मूनराइज देखो यहाँ पर आके, या बर्ड वॉचिंग करने के लिए आओ, या तालाब में आप पाँव वहां पर डाल के बैठ के देखो। लाइक अच्छा बेसिक स्किल नहीं है उनको, पूरा मस्ती पूरा करना है। ऐसा नहीं कि भाई स्विमिंग सीख लिया है तो वहां पे प्रॉपर जाके स्विमिंग कर रहे हैं या कुछ, है ना। कितनी सारे इंसिडेंसेस होते हैं अनकंट्रोल्ड सारी चीजों की वजह से।
तो वहां पर अपने में जो पेरेंट है वो डर जाता है कि यार भाई अब मेरे बच्चों को पानी के पास नहीं लेके जाना है, मेरे बच्चों को सर आप अभी हम हिमालयाज में ले आए तो बोलते सर मेरे बच्चों को आप राफ्टिंग मत कराना। हम उनको कई बार बताते हैं कि हमारा जो राफ्टिंग के वहाँ के लोग हैं वो सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट का सारा रूल फॉलो करते हैं, लाइफ जैकेट लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, एक 7 सीटर राफ्ट में 7 लोग ही बैठेंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फियर रहता है क्योंकि इस तरह की चीजें उनके आसपास होती रहती है। उनका गलती नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। अपने जो टूरिज्म बोर्ड्स है या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स है या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो लोग देखते हैं, इन लोगों ने भी इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक साफ सुथरी जगह आउटडोर एक्सप्लोर करने के लिए हम दे सके। राइट। सो आई थिंक कि किड्स के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, उनको भी थोड़ा रिस्क फैक्टर लेने की जरूरत है और उनको भी थोड़ा समझाना चाहिए या समझना चाहिए कि ये सिर्फ अपने किड्स के लिए नहीं बट अपने आप के लिए भी ये कितना जरूरी है कि हम लोग भी ये सब एक्सपीरियंसेस ले, आउटडोर जाए, थोड़ा बहुत कुछ देखे एंड जब तक हम नहीं समझेंगे शायद हम लोग अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स के पास भी अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग देते हैं पेरेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा जो अभी 40s में जनरेशन है, हमसे पहले सब साफ सुथरा था, हम लोगों ने शुरू किया है ये सब चीजें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अभी वो भी अपने मिडिल लाइफ क्राइसिस वाले विंडो में आ गए हैं, वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहीं साइकिल चलाऊं। आप देखो मैराथन में सब दिखेंगे आपको, अंकल आंटी, हम लोग दौड़ रहे, अपने ऐसे दिखते हैं सब लोग, है ना। यंग लोग तो कम दौड़ते हैं मैराथन में, है ना, मेडल चाहिए होता है उनको। तो उनको भी, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं ताकि तब नहीं सुधरा, बिगड़ा बचपन में था, पर कम से कम बचपन में आके सुधर जाए और अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को कम से कम एक सही राह पे ले जाए और आउटडोर का प्रॉपर एक्सपोजर दे। यस, वाओ, दैट इज नाइस। बिल्कुल भी। सो अमोल दादा, आई थिंक आपने बहुत कुछ ऑलरेडी बोल दिया है। आई थिंक लोगों को काफी कुछ पता चला है कि एडवेंचर टूरिज्म होता क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नेचर का क्या इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में। आई थिंक यू हैव समड अप इट सो वेल एंड यू नो so towards our end of the session we play a small game and that is called the rapid question and answer. So shall I shoot you the questions? Yeah, please. Right. So the first question is your preferred place to travel: forest, mountains, or beaches? Forest, mountains, beaches. All three. Everything. Forest, mountain. Forest easily approachable for us in Central India. Forest. Yes, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको बीचेस पसंद है ये मुझे पता है। Yes. So your favorite place, is it the Manali camp or the Nagpur camp? Nagpur camp. Nagpur camp, Ramtek camp. Right. Your preferred adventure sports, is it water, land or air? Land-based activities. Okay. और उसमें भी आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स रहेगा वो कौन सा है, मतलब जो भी वो गेम का नाम रहेगा? साइकिलिंग है या पैरासेलिंग है? ट्रेकिंग है, ट्रेकिंग, कैंपिंग, एकदम इजी, कोई भी कर सकता है, उसी तरह का गेम है वो तो। कैंपिंग, ट्रेकिंग है। राइट। समथिंग दैट यू वुड लाइक टू लर्न फर्दर, मतलब आपने तो इतने सारे स्पोर्ट्स कर लिए हैं, इतने सारे ट्रेनिंग्स ले लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और भी ये करना बाकी है और करना चाहिए। अभी हाँ, साइकिलिंग करना है बहुत सारा, लाइक मल्टी डेज साइकिलिंग। अभी उस पे काम कर रहे, थोड़ा फिटनेस पे और बाकी सब चीजें करके चलेंगे फिर। राइट। वन बुक दैट यू वुड recommend everyone to read? बुक्स तो वैसे बहुत सारे हैं, पर स्पेशली आउटडोर एक्सपोजर अगर बच्चों को कोई देना चाहता है और वो खुद भी सीखना चाहता है उसमें से कि इतना क्यों जरूरी है, तो एक बहुत अच्छे ऑथर है रिचर्ड लोव, उनकी बुक है लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स। लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स नाम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, इंस्ट्रक्टर, सभी ने पढ़नी चाहिए ऐसी बुक है, रिचर्ड लोव की लास्ट चाइल्ड इन द वुड। राइट। somebody from your field that you look up to, जो आपके रोल मॉडल है?
काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ की अलग अलग है रोल मॉडल जिनको हम लोग फॉलो करते रहते हैं, काफ़ी है। राइट। और आप भी खुद बहुत सारे कॉलम्स लिखते हो महाराष्ट्र टाइम्स के लिए, सो उसमें से आपका क्लोजेस्ट, और जैसे मेरा नाम है सोलफुल जर्नीज, तो वैसे आपका एक सोलफुल कॉलम की वो टॉपिक के बारे में आपको बहुत क्लोजनेस फील होता है। हाँ, मैंने एक पिछले साल लिखा था उनके लिए, निसर्गाचे हमसफर, मराठी में लिखा था। निसर्गाचे हमसफर नाम से अच्छा एक लिखा था, तो उसमें हिरवेगार संस्कार, जो जो ये सब जो बातें हम करते हैं, ये पेरेंट्स के लिए था बेसिकली, कि कैसे बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। फिर आत्मविश्वास से अंकुर नाम से एक बहुत अच्छा लिखा था। एकल कुंड्याची इकोसिस्टम नाम से भी मेरा एक बहुत अच्छा राइटअप था, जिससे कि ये अपना जो इकोसिस्टम है, ये आज के बच्चों को कैसे अकेला बनाने की तरफ पुश कर रहा है और उसमें से उनको कैसे निकालना चाहिए बाहर। तो ये 3-4 टॉपिक थे। एक अवजड़ दफ्तर, स्कूल बैग, जो हेवी स्कूल बैग होता है, वो एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट था, कि भाई इतने 2-3 हजार बच्चे 3-4 साल एक जैसा बुक यूज करते, तो क्यों ना उसको स्कूल में ही एक कबर्ड बना दिया जाए क्लास में, है ना। पर उसके ऊपर बाकी सब मेडिकल रिसर्च होगा, पर सोल्यूशन जो है उसके तरफ कोई जाता नहीं नॉर्मल, तो उस पर भी मैं काफी लिखता था। और बस यही। राइट, राइट। वाओ, दैट वाज गुड। एंड उसमें से जैसे मैंने आपको वो सारे ये पढ़े हैं कॉलम्स, तो आई फाउंड दैट मतलब ये बहुत ही सच्ची बात है कि अपने को नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए। और इसमें से हमें एक करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। मतलब इट्स नॉट Yes. अबाउट जस्ट बीइंग एन इंजीनियर और एन डॉक्टर और some very professional thing, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म या एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपना बहुत अच्छा करियर हो सकता है, एंड इट कैन बी as we say that a sustainable development as well. Yes. So, yeah. एडवेंचर टूरिज्म में बहुत अच्छा करियर है। तीनों चारों जो चीज़ें हैं, एडवेंचर टूरिज्म, आजकल जितने रिसोर्ट्स बन रहे हैं या बाकी आप देखो, प्रॉपर एक कॉर्नर होता है एडवेंचर पार्क उनका, वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्टर्स लगते हैं, उनको इंटरप्रेनर्स लगते हैं, उनको लीडर्स लगते हैं, ग्रुप लीडर्स। और अगर उसको हम देखेंगे तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आजकल काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में आती है। पैराग्लाइडिंग के, पैरामोटरिंग के वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो वो भी ट्रेनिंग स्कूल शुरू करने का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या ये सारी चीज़ें। एडवेंचर एजुकेशन आजकल स्कूल्स में, जैसे कि अभी कोविड के बाद भी होम स्कूलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो होम स्कूलिंग करने वाले बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो सोशल एस्पेक्ट एक उनका बाकी रह जाता है, उसके लिए वो एक्सपोजर देने के लिए भी अभी ऐसे मेंटर्स ढूंढेंगे। तो जिनको पैशन है एडवेंचर आउटडोर एक्टिविटीज में, उन्होंने खुद को उस तरह से प्रेजेंट करना शुरू अगर कर दिया, तो उनके पास भी बहुत सारे लोग उनको आएंगे। और एडवेंचर थेरेपी, थेरेपेटिक इसका जो इम्पैक्ट है एडवेंचर एक्टिविटीज का, तो थेरेपेटिक इम्पैक्ट में भी बेसिकली आजकल बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ट्रैक पे जाओगे ना, 1-to-1 ट्रैक, जैसे एक इंस्ट्रक्टर होगा और एक ही पार्टिसिपेंट होगा, तो स्पेशल पर्पस ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी अपना साइकोलॉजी में कुछ डिग्री डिप्लोमाज लेके और एडवेंचर एक्टिविटीज के सेफ्टी के लिए कुछ ट्रेनिंग लेके, उस तरह से भी आप फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा फील्ड है और जॉब सेटिस्फैक्शन 200% है इसमें। और आप बहुत सारा आउटडोर टाइम इसमें स्पेंड कर सकते हो। अगर आप एक कोई सेटअप कर सकते हो, तो आप फैमिली टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको भी थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर आइए, आप सबका स्वागत है फील्ड में। और अलग अलग तरीके से अभी भी इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। राइट, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक हम तो वेट कर रहे हैं कि कभी लॉकडाउन खुले और हमें मुंबई से नागपुर आने का मौका मिले और हम आपके कैंप साइट पे आए। मैंने तो खैर आपके साथ साइकिलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो आई होप आई कैन डू सम मोर सच एडवेंचर्स टू। एंड मतलब सच्ची में मेरे लिए वो एक आइस ब्रेकर था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्पोर्टी फीलिंग कुछ भी नहीं है मेरे में, लेकिन हाँ, जैसे ही आपने इनवाइट किया, फॉर मी इट वाज लाइक या आई शुड गिव इट अ ट्राई। और तो आई केम विद यू एंड इट वाज फैबुलस एक्सपीरियंस। So let me see. There are some questions and काफी लोगों ने बहुत सारे actually comments दिए हैं। तो yes, so everyone is saying that
Yeah, it is that adventure sports is itself very therapeutic, and yeah, so people are saying that okay, there is someone who is telling that I want to take my son with your group for trekking. Uh, yeah, people are loving, people are giving wonderful comments. सोलफुल So जर्नी yeah, का है सब क्रेडिट, इतना बढ़िया एक्टिविटी और ये पूरा सीरीज आपने स्ट्रिंग किया है। Ari sir. अरण्याचार और सोलफुल जर्नी ऐसे ही अच्छे अच्छे एक्टिविटीज करते रहिए। काफी एक्टिविटीज के लिए एक्सपोजर की जरूरत होती है और लोगों तक ले जाने की, तो Yes. बहुत अच्छा एक्टिविटी आप लोगों का ये। यस बिल्कुल हमारा इंटेंशन ही वही है कि पीपल शुड नो समथिंग बियॉन्ड यू नो व्हाट इज द कन्वेंशनल थिंग एंड बस उनको जब हम बोलते हैं कि स्कूल्स के एजुकेशनल ट्रिप्स है तो स्कूल्स को ऐसा लगता है कि बस किसी एडवेंचर कैंप पे ले गया तो हो गया मतलब और कुछ जाने की जरूरत नहीं है करने की जरूरत नहीं है बट हमारी यही कोशिश है कि वो जाने की it is not just doing a picnic or a adventure camping or something else but it is more about learning and creating a valuable meaning to that outdoor activity बहुत you know बहुत अच्छा है इसका तो। yes yes तो ये बहुत ही वंडरफुल टॉक रहा आप और कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को बस कीप एक्सप्लोरिंग, स्क्रीन टाइम कम कीजिए थोड़ा, सबको उससे परेशानी है, जितना जरूरी है उतना तो करना ही है, ऐसा भी नहीं कि लाइक उसको कुछ ये, पर उसको ग्रीन टाइम से कहीं ना कहीं बराबर कर लेना है, ठीक है ना, अपना डाइल्यूट कर लेना है उसको, बहुत सारा ग्रीन टाइम भी स्पेंड करना है, आउटडोर टाइम जितना आप हो सकता है अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ भी आउटडोर एक्सपोजर करते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए सब चीज़ों को। और थैंक यू सो मच, कीप एक्सप्लोरिंग सोलफुल जर्नीज। और अरण्याचार को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए इंटरेक्शन करने का। पहले आपके सारे सेशंस मैंने अटेंड किए थे, वो भी बहुत अच्छे सेशंस थे, होम स्कूलिंग पर और टाइगर वाला, और इवन फर्स्ट वाला जो सेशन था वो भी मजा ही आ रहा है। आप लोग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much Amol Dada. It was wonderful listening to you and आपने जितनी चीजें बताई वो आधे से ज्यादा चीजें हम लोग डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म तब भी हम लोग एसोसिएट करते हैं कि हम बच्चों को या हमारे ट्रैवलर्स को हम क्या चीजें बताना चाहते हैं। तो हमारा आपने इतने बढ़िया तरीके से वही चीजें पुट फोर्थ की, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके इसके लिए। और हम चाहेंगे कि जरूर जैसे ही कोविड खत्म हो हम आके आपसे मिलें और आपके साथ थोड़ा और समय बिताएं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पहली बार जब निकलेंगे बाहर तो सीधा नागपुर आ जाइए आप लोग। बिल्कुल सर। मुझे कान्हा जाना है तो कान्हा का रास्ता नागपुर वाया ही होगा, नागपुर से ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो जितने भी लोग कान्हा, बांधवगढ़, पेन जाना चाहते हैं, आपको सबको नागपुर, टाइगर देखने के लिए जाना है तो नागपुर ही आना पड़ेगा आपको। टाइगर गेटवे ऑफ टाइगर लैंड है हमारा। बिल्कुल। और सर आपने तो हमें एक और एक एक्साइटमेंट दे दिया है कि विष्णु जी हमसे मिलने आए, तो नागपुर की तो ये खासियत है सावजी खाना। मैं एंड अभी आई विष्णु जी कीप की वाचिंग यस हमारा तो पूरा अभी सेटअप जहाँ जहाँ विष्णु जी की रसोई है, सीएसी ऑलराउंडर वहां पर है। बिल्कुल, तो दैट इज लाइक अ कंबाइंड इंटरेस्ट कि थोड़ा खाना भी है, बीइंग अ फूडी एंड देन थोड़ा एडवेंचर भी करना है। करेंगे एक सेशन विष्णु जी के साथ भी करेंगे, उनके जी पास भी बहुत सारी स्टोरीज है, एक बार उनको भी बोलेंगे। ऑब्वियसली यस यस बिल्कुल बिल्कुल। So I think it's time to end our session. And thank you, everyone. Thank you, Amolji. Thank you, Aniket. And it was such a wonderful session of a lot of insights about adventure tourism, educational tools for kids as well as parents. So let's meet on Wednesday on one more such interesting topic. And I think let it be a surprise what the topic would be. Okay, so sure. Uh, so goodbye, thank you, and enjoy your बाय बाय, festival and be थँक यू सो safe. मच दीप्ती, Thank you, अनिकेत, थँक यू, मजा आली, खरंच Yes. मजा आली, छान, थँक यू सो मच, thank you, Thank you. thank you. Bye bye. Happy Rakshabandhan. Bye bye everyone. थँक यू सो मच, सेम टू यू।